1 year Bible reading plan. Luke 5 chapter 1 verse 16 verse, Deuteronomy 25 chapter 26 chapter 27 chapter। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 16 वचन और व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 26 अध्याय 27 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे ल्यूक 5 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स, पहले किंग्स जेम्स वर्जन में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में आते हैं। हमारे आंखें, हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में पिता तेरी आवाज़, तेरे वचन भरने की हम विनती करते, ताकि वो वचन हमारी मार्गदर्शा हो और हमारे मार्ग में पिता परमेश्वर हम तेरी आवाज़ को सुनकर, तेरे वचनों को सुनकर पिता अपने मार्गदर्शा को पा सके। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करो, हमारे सामने से झूठ को पर्दाफाश करो, सच्चाई को हमारे सामने रखो, ताकि हम तेरा भय लेकर चलते रहे और तेरे राज्य के कामों में लाभदायी बनते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। लूक 5 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स, हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। लूक 5 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स। And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust and a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. We have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, of that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. And it came to pass when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And he put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately the leprosy departed from him. And he charged him to tell no man, but go and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, to a testimony unto them. For so much the more went there a fame abroad of him, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से।
परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई दिखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों की नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। 12 वचन से आगे, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि अब उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लकवा के रोगी को चंगा करना। 16 वचन तक ही हमने पढ़ना था, हमने पढ़ा उसे। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सच्चाई को हमारे सामने लाने के लिए, क्योंकि यह सच्चाई शैतान के जगत के सामने जब जाती है, खुदा परमेश्वर, वह हार जाते हैं, क्योंकि सच्चाई की ताकत उनसे ज़्यादा मजबूत रहती है। अशुद्धता से हमें परमेश्वर पिता बचाने के लिए यही वचन हमारे काम आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते, हमारे मनों को, सोचों को आपके वचनों से भर दिया इसके लिए। वी थैंक यू आबा फादर गॉड, हमें मजबूत करने के लिए और तेरे वचन के अधीन हमको लाने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।